What are articles? Articles होते क्या हैं? Normally we refer to a, and the. That exactly what we call articles are. Let's go through them. Basic कर लेते हैं, and then we're going to do the exercise as usual. Now, again, we'll go with the examples to understand them better. For example, the first example says, I saw a doctor. Now, a is an article here. What does it mean? It means first of all, it means the doctor, the number of doctors is only one, a. The second thing, it means the doctor is not somebody which we are already aware about. The listener is not aware about which doctor. I saw a doctor, it can be any doctor. So the rule says A or N, and we'll see further when do we use it. They both do not refer to a particular person or thing. It leaves indefinite. तो इसलिए इनको indefinite articles भी बोला जाता है. They are indefinite articles because the listener is not aware that who this doctor is. Now, and rule number 2. It is used before a word beginning with vowel sound. Now, please understand they are not saying vowel. They are saying vowel sound. It is not A, E, I, O, U. That is not what they are talking about. What are they mean by vowel sound is A. They're talking about vowel sounds. For example, when they say an S, a. So when we pronounce as, the word a comes out from the mouth first. So they have used an before it. The same way enemy, a. So they have used an. Inkstand, e. Orange. I'm nowhere saying about a, e, I, o, u. Please understand that. Umbrella, o. R. So that is again n. Now, अगर मैं vowels A, E, I, O, U की बात करूं तो यहां पर तो A आ जाना चाहिए, but we are talking about vowel sound. Now, some abbreviations we have. For example, F, H, L, M, N, R, S, X. If you listen carefully, every alphabet is starting with A. So, an MBA. It is not a MBA, it is an MBA. An SAO. They are abbreviations and we are using and before that. दोनों जगह हमने and का यूज किया हुआ है. That is what the article meant. तो and हमने A, E, I, O, U लगाकर नहीं देखना है. How we have to understand by the sound. What sound is coming up. ऐसे ही consonant sound. क, ख, ग, etc. For example, a boy, b. A woman, a horse, a 1 rupee note, a university. Now you, इंग्लिश वाला यू तो है, लेकिन हिंदी वाला यू इज कॉन्सोनेंट, व्यंजन बोलते हैं हिंदी में इनको. Now a यूरोपियन, यू अगेन ई लगा हुआ है, बट वी आर स्टिल यूजिंग अ, एन यूज नहीं कर रहे हैं. Now an or a, when we fix them, when we use them with few and little, so they change the meaning actually. हम जब एडजेक्टिव्स की क्लास करेंगे विल अंडरस्टैंड देम बेटर. अभी के लिए हम इतना समझें कि वर्ड्स फ्यू एंड लिटल विदाउट एनी आर्टिकल, इफ आई से फ्यू और इफ आई से लिटल. नाउ फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, लिटल अनकाउंटेबल के लिए. तो विदाउट एन आर्टिकल फ्यू एंड लिटल मीन्स नन, ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर. वी हैव लिटल टाइम टू स्पेयर, मतलब मेरे पास टाइम है ही नहीं. ऑलमोस्ट जीरो टाइम, है ही नहीं टाइम मेरे पास. बट व्हेन आई से वी हैव अ लिटल टाइम, अ लगाते ही दैट मीन्स आई हैव सम टाइम, थोड़ा सा है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, your brother or your sister is asking you to accompany you for a party. You'll say, I have little time, I'm going, bye.
But on the other hand, if you say I have a little time, get ready fast, that means it's a positive thing. That is also notation. That little means negative and a little means something positive. ये डिफरेंस आपको जो फिल द ब्लैंक्स आएंगे या ग्रामेटिकल एरर्स आएंगे हेल्प करेगा, तो इसको इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना. द सेम वे वी हैव फ्यू पर्सन्स. नाउ मैंने कहा था पर्सन्स काउंट काउंटेबल है, आप लोगों को काउंट कर सकते हो, टाइम को काउंट नहीं कर सकते थे. वैसे टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, मेजर किया जाता है तो अनकाउंटेबल होता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन्स इट इज काउंटेबल, तो वी यूजिंग फ्यू. तो फ्यू और लिटिल का डिफरेंस भी क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि फ्यू कब लगता है और लिटिल कब लगता है. फ्यू इज फॉर काउंटेबल एंड लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल. नाउ फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, मतलब मीटिंग का कोई फायदा नहीं था, कोई बंदा था ही नहीं. देयर वाज नो वन एक्चुअली, ऑलमोस्ट नो वन. अब फ्यू पर्सन मतलब कुछ लोग थे, तो मीटिंग का कुछ फायदा जरूर हुआ. देयर वर पीपल हु वर लिसनिंग टू मी. Rule number 6. In the following senses. In its original numerical मतलब one, एक. Not a word was said. एक भी word नहीं बोला गया. ऐसे ही a word to the wise is sufficient. समझदार को इशारा ही काफी है. That's what the actually phrase means. A word to the wise is sufficient. Second, the wake of a certain time. A vague sense. One evening a beggar came to my door. मतलब ऐसे ही एक beggar एक शाम को मेरे घर पर आया. One day, a beggar, any beggar. A vague sense. या फिर जब आप पूरी क्लास के लिए बात करना चाहते हो, पूरी कम्युनिटी के लिए बात करना चाहते हो, then you use a pupil should obey his teacher, a child should obey his father. तो a pupil कहने का मतलब कोई एक शिष्य, कोई एक स्टूडेंट नहीं है. a pupil कहने का मतलब है anybody who is a pupil, anybody who is a student, they should obey the teacher. तो a pupil यहां पर एक नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे की पूरी क्लास, सारे स्टूडेंट, सारे प्यूपिल, सारे शिष्यों को. Then to make a common noun of a proper noun, अगर एक प्रॉपर नाउन को आप, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था एक बार, और डैनियल कम टू अ जजमेंट ऑफ डैनियल, तो बंदे का नाम है, इट्स नेम ऑफ अ पर्सन. व्हाई आई एम यूजिंग अ बिफोर दैट? दैट इज रॉन्ग. नो, इट्स नॉट रॉन्ग. रीजन बीइंग अ डैनियल मींस अ वाइज मैन. इट इज अ मेटाफोरिक नाउन और प्रॉपर नाउन जो है आपका, हमने इसको कॉमन नाउन बना दिया. और डैनियल मतलब अ वाइज मैन. अब डैनियल एक नाम नहीं है, डैनियल वैसे एक नाम होता है, बट अ डैनियल कहते ही वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइज मैन. तो ये तो सब ए और एन के लिए था. आई बिलीव दैट मस्ट बी क्लियर बिफोर वी गो टू द. क्या ए और एन अभी तक क्लियर है? जस्ट गिव मी अ यस नो ऑन द पोल प्लीज. क्या ए और एन के फर्स्ट 6 रूल्स आर दे क्लियर? If there any doubt, I have already asked you guys to raise your hands so I can help you out. Okay, great. Look at the next 7th one. The. Now the होता है जब हमें मालूम है, लिसनर को पता है, जिससे आप बात कर रहे हो ना, उसको मालूम है कि आप किससे किसके बारे में बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल हमने पहले किया आई सो अ डॉक्टर, अब हम कह रहे हैं आई सो द डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर जिसके बारे में लिसनर को पता है. हो सकता है रिसेंटली उसके बारे में बात चल रही हो. द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट. द बुक, वो वाली बुक जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए मतलब यू को मालूम है, लिसनर को मालूम है कौन सी बुक. तो यहां पर अ बुक लगाऊंगा गलत हो जाएगा. अ बुक यू वॉन्ट गलत, द बुक यू वॉन्ट, बिकॉज लिसनर को मालूम है कि कौन सी बुक है. तो द पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और समवन और समथिंग ऑलरेडी रेफर टू. लिसनर इज अवेयर कि किस बारे में बात चल रही है. उसके अलावा द जो है
that is being used with the names of gulfs, rivers, seas, oceans, groups of islands and mountain ranges. इन सब के साथ भी जो है we use the. So example number 8. For example, in the Persian Gulf, the Red Sea, the Indian Ocean, the British Isles, the Alps. This is again one of the important rule that you should be aware about. पता होना चाहिए हमें. ऐसे ही कुछ सर्टेन बुक्स हैं जो हमारी पौराणिक ग्रंथ हम जैसे बोलते हैं, जो हमारी बड़ी रिलीजियस बुक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द पुराणास, द रामायण, द महाभारता, the Quran. So all these books, when we say the name with respect, due to respect, we use the before that. तो हम इनसे पहले the लगाते हैं. फिर उन्होंने इसका एक्सेप्शन दिया आपको, but we never say the वाल्मीकि's रामायण. हम कभी ये नहीं कहते the वाल्मीकि's रामायण, because वाल्मीकि एक इंसान का नाम है, उस समय के सेंट का नाम था. उससे पहले द नहीं लगाया जा सकता. तो अगर मैं रामायण से पहले कोई वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं डिटरमाइनर, तो द लगेगा. लेकिन अगर मैं इसके सामने लिख रहा हूं इसके राइटर का नाम, जिस सेंटेंस को लिखी है, आई विल यूज वाल्मीकि's रामायण. सो दिस गोना बी करेक्ट. अदरवाइज द रामायण इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज रामायण से पहले हमने द लगाया, बिकॉज रिस्पेक्ट दिया. अब वाल्मीकि से पहले द नहीं लगाएंगे, बिकॉज वाल्मीकि प्रॉपर नाउन है. लेट्स गो टू द नंबर 10 नाउ. Example number 10. The is used before the names of things unique of their kind, जो चीजें यूनिक हैं इस दुनिया के अंदर. फॉर एग्जाम्पल सन, स्काई, ओशियन, सी, मून, ये सब यूनिक चीजें हैं. तो जो भी चीजें यूनिक होंगी उनसे पहले भी हम द लगाते हैं. ऐसे प्लूरल नाउन. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला नंबर के लिए देखा जाए ए और एन का मतलब होता है 1, तो हम उसके लिए न्यूमेरिकल हमारा समझ आ गया, सिंगुलर है. पर जब भी प्लूरल होता है तो उसके आगे कभी भी ए और एन नहीं लगता है, हमेशा द लगेगा अगर मुझे आर्टिकल चाहिए ही. फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्राइव अवे द काउस फ्रॉम द फील्ड. कौन सी काउस? जो एक गाय नहीं है, बहुत सारी है, और जो फील्ड में है इस समय ग्रेज कर रही है, मे बी फ्रॉम इन समबडी एल्स फील्ड दे आर, सो दे ड्राइव अवे द काउस. ऐसे ही प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन ऑब्जेक्टिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल दिस इज. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कहता था ग्रेट रानी ऑफ झांसी. वी विल नॉट से द रानी ऑफ झांसी. यहां पर हम नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं द ग्रेट. अब ग्रेट एक एडजेक्टिव लग गया रानी ऑफ झांसी से पहले. कालिदास से पहले एक एडजेक्टिव लग गया इमोर्टल, अमर. तो इन एडजेक्टिव्स को हाईलाइट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए वी हैव यूज्ड द. तो जब भी हम रानी ऑफ झांसी और द लगा रहे हैं तो इट्स बेटर टू यूज ग्रेट इन बिटवीन. इमोर्टल लगा रहे हैं तो इमोर्टल से पहले द लगाना जरूरी है. खाली हम लिखते हैं इमोर्टल कालिदास, इट विल नॉट गिव अ रिस्पेक्ट टू देम. हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है. द इमोर्टल कालिदास, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके एग्जाम में आता है, सुपरलेटिव से पहले हमेशा द लगता है. सचिन इज द बेस्ट, द बेस्ट पर्सन. मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आप लोगों को कि एक होती है कंपैरेटिव डिग्री जब ईआर लगाते हैं, एक होती है सुपरलेटिव विच इज ईएसटी. नंबर 14. The noun, if emphasized, is laid on the use of such a noun. Noun can be proper or abstract. The time for doing it. Now, there is something happening and you are saying, now this is the time. यही समय है इसको करने का.
when you're stressing, when you're emphasizing on a particular time, and then you are using the time for doing it. Occasion to help the distressed. So this is basically we are using to give emphasis. ऐसे ही ऑर्डिनल्स ना, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स क्या होते हैं, आई बिलीव गाइस मस्ट बी अवेयर अबाउट. जो 1 2 3 4 दे ऑल आर कार्डिनल्स, इन सबको कार्डिनल्स बोलते हैं. लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, दे ऑल आर ऑर्डिनल्स, तो भी ऑर्डिनल बन जाते हैं. तो इन ऑर्डिनल से पहले वी यूज द. He was the first student, the first. The second, अब ये फर्स्ट ऑर्डिनल है, सेकंड ये भी ऑर्डिनल है, तो इनसे पहले हमें द लगाना होता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये वाला. Then we have the is used before an adjective and the noun is understood. Now the poor are always with us. अब the लगाया poor से पहले, क्यों लगाया? Because they are talking about poor people. जो गरीब लोग हैं उस प्लूरल के बारे में बात की जा रही है. द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग दो कम्युनिटीज हैं, कमजोर लोगों की और स्ट्रॉन्ग लोगों की. तो यहां वीक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं बोला गया, द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग बोला गया. नेक्स्ट इट. अब कई जगह हम ऐसे भी देखते हैं आर्टिकल लगना ही नहीं चाहिए. देयर आर सर्टेन लाइंस व्हेन वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल्स. वो कौन कौन सी लाइंस हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ये कहता है नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अ कॉमन नाउन. अब देखो हमने पहले जब प्रॉपर नाउन के आगे द या अ या एन लगाया तो उसका एक रीजन था, मीनिंग था. वो कहता है अगर ऑलरेडी कॉमन नाउन है और रेफर करते हैं सारे मेंबर्स ऑफ द क्लास, तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. अब अ मैन इज मॉर्टल कहने का कोई तुक नहीं बनता. मैन, एवरी मैन इज मॉर्टल, हम हर एक मैन की बात कर रहे हैं, मरना ही मरना है. ऐसे ही फिश हैज हाई प्रोटीन कंटेंट. नाउ फिश हैज हाई प्रोटीन कंटेंट, हर एक फिश की बात हो रही है, कंप्लीट क्लास. व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर, अब एक फ्लावर को देख लिया आपने, एक पर्टिकुलर काइंड का फ्लावर है, तो वो सारे, अगर उस फ्लावर का कोई नाम है तो वो सबका नाम है, वो उस पर्टिकुलर एक फ्लावर के लिए नाम नहीं आएगा. उस टाइप के जितने भी फ्लावर्स हैं सबका एक ही नाम दे दिया आपने. रोज हो गया फॉर एग्जाम्पल. नाउ दे से द इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग टू एब्स्ट्रैक्ट. तो कई बार कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज कर देते हैं इसको. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अगेन अ काइंड ऑफ क्वालिटी ही होता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इट इज बेसिकली गिवन विद अ नाउन. ये एक नाउन है, ना कि एक एडजेक्टिव है. तो जब भी अब कॉमन नाउन, अब डेविल क्या होता है, डेविल इज बेसिकली शैतान, दुष्ट. लेकिन अगर मैं इसके आगे द लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, मतलब ये उसकी एक क्वालिटी हो गई. द डेविल इन हिम, उसके अंदर जो डेविल है, उसके अंदर जो बुरे उसके कार्य करने की जो उसकी, यू कैन से, जो उसकी टेंडेंसी है, दैट इन हिम बिगिंस इट्स मिसडीड्स नाउ एंड देन. वो नाउ एंड देन उसके अंदर से वो बुरी चीज हरकतें करता ही रहता है. ही यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स. ऐसे ही कई हम आर्टिकल्स की बात करते हैं जहां पे आर्टिकल नहीं लगता, कुछ मटेरियल होता है, मेटल्स वगैरह होती हैं, जैसे गोल्ड है, स्टोन है, वाइन है, आयरन है, व्हीट है, वुड है, क्लोथ है. इन सबसे पहले भी ए एन द नहीं लगता जब तक ये मेटल्स की तरह यूज हो रही है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. जब तक ये एक मटेरियल है, till the time they are material, they are metals, we are not using any articles. कोई आर्टिकल नहीं आएगा. गोल्ड, सोना is a precious metal. wheat, गेहूं, grows in उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. आयरन, लोहा is a useful metal. बट अगर मैं बोलूं an iron is a useful gadget. now gadget when we talk about, it's not a metal we are talking about. हम बात कर रहे हैं आयरन, जिसको हम घर में प्रेस भी बोलते हैं, प्रेस करते हैं कपड़े, आयरन करते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर गैजेट. तो वहां पर उसके सामने हमें कोई ना कोई आर्टिकल लगाना जरूरी है.
इट इज नॉट अ मेटल, हम लोहे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रेस, हम एक गैजेट की बात कर रहे हैं। आई बिलीव यहां तक क्लियर है। इफ एनीबडी हैज अ डाउट टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, लेट मी नो इन द पोल प्लीज। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ओके, ग्रेट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इट सेज ये अब तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल लगता ही नहीं है, दैट एवरीबडी आई बिलीव अवेयर। दिल्ली से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, न्यूटन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? दिस मैन इज अ सेकेंड न्यूटन। अब न्यूटन से पहले हम तो कह रहे हैं लगता ही नहीं है, तो हमने तो लगा दिया, और लगाया भी अ सेकेंड न्यूटन। अब इसका क्या मतलब हुआ? कहता है इसका मतलब ये है, हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, न्यूटन तो एक साइंटिस्ट था, बट हम इस इंसान को कह रहे हैं सेकंड न्यूटन है, मतलब इसका दिमाग भी बहुत तेज है, बहुत शार्प है, इज ऑल्सो हैविंग क्वालिटीज ऑफ न्यूटन। तो हमने बोल दिया दिस मैन इज अ सेकंड न्यूटन। बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब बॉम्बे, मैनचेस्टर इज अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका आई बिलीव। इट इज फेमस फॉर इज क्लोथिंग। तो हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, तो मैनचेस्टर तो वहां पर है, इंडिया में कहां से आ गया? फिर कहते हैं बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसे मैनचेस्टर साउथ अफ्रीका में फेमस है, वैसे ही बॉम्बे इंडिया में फेमस है, तो बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां पर न्यूटन और मैनचेस्टर प्रॉपर नाउन्स नहीं है, बट दे हैव बिकम कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, नो आर्टिकल आर यूज बिफोर अ कॉमन नाउन, जब हम उसको बहुत वाइड सेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस एज अ सब्जेक्ट, द साइंस हैज डेवलप्ड मच इन द पास्ट 100 years। साइंस हैज डेवलप्ड मच इन द पास्ट 100 years। तो साइंस एज अ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे पहले द नहीं आएगा, सिंपल सा रूल है हमारा। ऐसे ही काइंड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम में आता है काइंड ऑफ वाला, दिस कम्स इन एग्जाम समटाइम। The article is used before the noun. No article is used before the noun following kind of. What kind of a hobby? गलत, अ नहीं आना चाहिए। What kind of hobby? कोई आर्टिकल नहीं चाहिए इसके बीच में। What kind of flower is it? What kind of person is he? अ नहीं लगेगा काइंड ऑफ के बाद, ये रूल है, प्लीज इसको समझ लीजिए। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम, ऑनेस्टी। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से विजडम बुद्धिमता, ऑनेस्टी ईमानदारी। तो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये दोनों ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, लेकिन कहता है इसके आगे वैच तो नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, दैट्स फॉर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के विजडम की बात करें, एक पर्टिकुलर इंसान की ऑनेस्टी की बात करें, तब हम लगाते हैं द विजडम किसका भला? ऑफ सोलोमन। अब हमने इंसान लगा दिया, उसका नाम लिख दिया, तो वी गॉट द विजडम ऑफ सोलोमन। ऐसे ही आई कैन नॉट फॉरगेट काइंडनेस, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं तो द काइंडनेस, आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस with which he treated me. I believe we are making it quite clear कि जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। अगर लगेगा तभी लगेगा जब हम एक पर्टिकुलर इंसान के एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। ये रूल हमने अभी कर ही लिया था लैंग्वेजेस वाला, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं आएगा, ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री नहीं आएगा, मैथमेटिक्स से पहले नहीं आएगा, हिंदी से पहले नहीं आएगा। ऐसे ही नो आर्टिकल इज यूज बिफोर वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन। मतलब किसी भी आर्टिकल से कोई भी आर्टिकल आप कहीं भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होता कि आर्टिकल लगाना ही लगाना है, जब तक हमें जरूरत ना हो हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। जरूरत कैसे पता चलेगी? व्हेन यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ रीडिंग
तब आपको समझ आएगा कि यार यहाँ पे तो आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल्स का मतलब है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर की कैटेगरी में आता है। डिटरमाइनर मतलब जब मुझे कोई चीज डिटरमाइन करनी है उससे पहले लगाया जाता है इसको। आई वेंट टू स्कूल टिल लास्ट ईयर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आई नेवर बीन टू हॉस्पिटल, बिल्कुल ठीक है। द आई वेंट टू द स्कूल टिल लास्ट ईयर नहीं आएगा। आई हैव नेवर बीन टू द हॉस्पिटल नहीं आएगा। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अगर मुझे मालूम है कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। जैसे हमने स्टार्टिंग में द का पहला रूल पढ़ा था, लिसनर को अगर मालूम है कौन सा हॉस्पिटल है कौन सा स्कूल है तो हम लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बताया भी हुआ है, बट एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स व्हेन रेफरेंस इज मेड टू अ डेफिनेट प्लेस, तब लगाते हैं। ऐसे रिलेशंस के आगे फादर मदर आंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं लगाते, लेकिन जब रिलेशन किसी और का हो तब लगाते हैं। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। मदर वुड लाइक टू सी यू, अब आपकी मम्मी आपसे मिलना चाहती है, ठीक है जी, मदर वुड लाइक टू सी यू। बट अगर किसी और की मम्मी मुझसे मिलना चाहती है, द मदर वुड लाइक टू सी यू, मतलब आपकी फ्रेंड को आप बोल रहे हो माई मदर वुड लाइक टू सी यू, तो आप उसको क्या, द मदर वुड लाइक टू सी यू, दैट इज गुड इनफ। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो आपकी फ्रेंड को उसी की मम्मी देखना चाह रही है मिलना चाह रही है, तो आप कहोगे मदर वुड लाइक टू सी यू, मतलब तुम्हारी मम्मी। लेकिन अगर मेरी मम्मी है तो द मदर आई कैन से। वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग वन। The last 2 or 3 rules are left. Let's finish them also. It says article should not be used. अब देखो मैक्सिमम आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल शुड नॉट बी यूज, शुड नॉट बी यूज्ड। ए एंड द तो सबको पता है, लेकिन कई पर्टिकुलर जगह पे हमेशा द लगता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा के उसको कॉमन नाउन बना दिया जाता है, मेटाफोरिक नाउन बना दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन लगा दे तो एक पर्टिकुलर इंसान की बात होती है। गल्फ, सीज, यूनिक चीजें, उनसे पहले द लगाया जाता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां नहीं लगना है यही पता होना चाहिए आपको। ऐसे ही कहीं मर्जी नहीं लगा सकते हम लोग सब्जेक्ट्स के नाम से पहले, जैसे भी हमने देखा था। देयर सो मेनी रूल्स वी हैव डन टिल नाउ। लास्ट 2 रह गए। कहता है एस डी शर्मा वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब प्रेसिडेंट एक कंट्री का एक टाइम पर एक ही होता है, तो वहां पर आर्टिकल नहीं चाहिए। दिस इज नॉट राइट, ये नहीं आएगा, ये राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल दिस इज अगेन। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर पोजीशन दैट आर हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। प्राइम मिनिस्टर की बात कह लो, नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक ही हो सकता है, दो थोड़ा हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। नेक्स्ट वी से, ये भी हमने एग्जांपल बार बार किया है, नाउन्स में किया, प्रोनाउंस में किया, वर्ब्स में किया। मतलब कुछ जो रूल्स है बार बार रिपीट होते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज वो ग्रामर के अंदर हर एक पार्ट के अंदर यूज होते हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, मैंने समझाया था, अगर एंड के बाद दोबारा आर्टिकल नहीं लगा हुआ मतलब ये एक ही कैट है, एक ही व्हाइट और ब्लैक दोनों उसी के कलर है। बट अगर मैं कह दूं अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, मतलब मेरे पास 2 कैट्स हैं, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। फर्क क्या है? सिर्फ एक आर्टिकल लगाने से पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमने ये भी एग्जांपल किया, द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज एब्सेंट, बिल्कुल ठीक है। कहेंगे 2 लोग हैं जी, इज क्यों आया? गलत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब सेम ही इंसान प्रेसिडेंट भी है और चेयरमैन भी है, वो सेम है। लेकिन अगर द लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आर आ गया। वर्ब में भी किया था हमने ये अब 2 लोग हैं, प्रेसिडेंट अलग है, चेयरमैन अलग है, द 2 डिफरेंट पीपल वी हैव। आई बिलीव आर्टिकल्स शुड बी क्वाइट क्लियर टू यू गाइस। आर्टिकल्स में इतना ही है, इनकी एक्सरसाइजेस हम डेफिनेटली करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, बट अभी